Hello, everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Hair loss, whether it is hair loss in men or hair loss in women, is a very common biological problem all over the world, not just in India. The importance of hair in enhancing the overall personality of a human being cannot be underestimated. Hair is the first thing that people normally notices about you. A great hairstyle can give you the personality boost you require in doing well in both personal and professional fronts. Hair loss, on the other hand, can prove to be a real disadvantage for many people. Many young boys and girls start losing their hair early in life, caused by a variety of genetic, environmental, and systemic factors. Hair fall can affect everyone, regardless of their country of origin. Thankfully, effective hair treatment can control and even reverse the hair loss process. So, we are here to know more about hair loss, its management, and more in detail about hair care and its management. So let's connect today with our skin expert, Dr. Priyanka Sharma, live from Jaipur, to make us aware on hair fall and its management. Dr. Priyanka Sharma is a dermatosurgeon, dermatologist, and cosmetologist and comes with wealth of experience. She completed her MBBS and MD from prestigious Savai Mansingh Medical College, Jaipur. She is also a member of AIDBL. Some of the services provided by the doctor are acne scar treatment, vitiligo, all types of skin allergies, fungal infections, dermatitis treatments, skin care, and skin tag treatments, etc. She is also well versed with cosmetic procedures and peeling. Her special interest is in immunodermatology and cosmetology. Her motto is to create a beautiful world and to leave an impact on society through her services. Thank you so very much, Doctor, for joining us today. It is our pleasure to host you. A very warm welcome to you, Dr. Priyanka Sharma. थैंक यू सहयोगिता। सो डॉक्टर, हेयर लॉस पर हम बात कर रहे हैं और एक बहुत ही आम कंडीशन है। ऐसे ऐसा कोई भी नहीं है शायद जो ये कह सके कि हमें कभी हेयर फॉल नहीं हुआ। हेयर फॉल तो होता ही है, वो हेयर लॉस में कब कन्वर्ट हो जाता है ये समझने की कोशिश आज हम आपसे करेंगे। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कॉन्वर्सेशन डॉक्टर, वो ये कि व्हाई डज हेयर फॉल अकर, या हेयर फॉल और हेयर लॉस क्या ये दो अलग अलग टर्म है, इसे हमें अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है? देखिए, हेयर फॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपका स्किन होता है और उसमें जो आपकी अपर लेयर होती है वो अपने आप को रिप्लेस करती रहती है, वो पील ऑफ होती रहती है, नहीं आती रहती है। सिमिलरली हेयर्स जो है उनका भी साइकिल चलता है। हेयर बड़े होते हैं, देन दे फॉल एंड देन दे कम अगेन। सो हेयर फॉल एक नेचुरल चीज है। ठीक है। हेयर लॉस एक ऐसी कंडीशन है जब आपके हेयर्स फॉल हो रहे हैं और वो वापस नहीं आ रहे हैं, या किसी वजह से उनका जो थिकनेस वगैरह है वो इतना कम हो गया है कि आपके स्कैल्प में बॉल्ड पैचेस दिखने लग गए हैं, देन दैट इज द प्रॉब्लम। बाकी जो एक नॉर्मल हेयर फॉल है वो एक इशू नहीं है। हम लोग आमतौर पे देखते हैं व्हेनेवर वी गो फॉर हेयर वॉश या नॉर्मल कोम्बिंग भी जब हम करते हैं तो भी हमें रियलाइज होता है ऑन अ डेली बेसिस, जैसा कि आपने कहा कि एक नेचुरल साइकिल है हेयर का भी। तो कुछ बाल गिरते हैं लेकिन कभी कभी वो कुछ बाल जो है गुच्छे में तब्दील हो जाते हैं, कभी कभी हर जगह हमें सिर्फ अपने बाल ही बाल नजर आते हैं। तो क्या नॉर्मल है डॉक्टर और क्या नॉर्मल नहीं है हेयर फॉल हेयर लॉस? इसके बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कैसे समझें और कब हमें अलार्म होने की ज़रूरत है और आपके जैसे किसी डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है? देखिए, साल में आप लोग देखेंगे कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आप लोगों का हेयर फॉल एक बार इंक्रीज होगा, और वो बाद में अपने आप ही 1 to 2 मंथ में कंट्रोल भी हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट। एंड इसमें लगभग आपके 30 to 40 स्ट्रैंड्स इन अ मतलब सिंगल जब आप कोम्बिंग करेंगे तब फॉल हो सकते हैं, जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। वी डू नॉट कंसिडर इट एज इलनेस। एंड लेकिन जब आपका हेयर फॉल जो है कॉन्टिन्यूअस होता ही जा रहा है, सपोज कीजिए 3 to 4 मंथ हो गया है, बट आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा है, या आपका हेयर फॉल इतना सीवियर इंटेंसिटी के ऊपर हुआ है कि आपका जो स्कैल्प है वो एकदम से ही विजिबल होने लग गया है, या फिर आपको क्रोनिक हेयर फॉल है, आपको 6 मंथ से भी ज्यादा हो गया है और आपका हेयर फॉल होता जा रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल। इसके अलावा आप अपना स्कैल्प का हेल्थ भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर डेंड्रफ हो रहा है तो हो सकता है आपको डेंड्रफ ना हो, कोई सोरियासिस जैसी इलनेस हो जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास आना पड़े, या आपकी अगर स्कैल्प के अंदर छोटी फुंसियां होती है, या फिर जो स्कैल्प है उसमें बहुत ज्यादा सीवियर इचिंग हो रहा है आपको,
या फिर और कोई आपको सिम्टम दिख रहा है, जैसे आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो बदलता जा रहा है, आपका हेयर का कलर जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कुछ भी हमें लग रहा है कि हमारे स्कैल्प पे जो हो रहा है या हेयर फॉल जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मली बढ़ गई है, वो अपने आप रिस्टोर नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है डॉक्टर जैसे कीमोथेरेपीज़ पे जो पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत हेयर लॉस होता है। प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है और वो कौन लोग हैं जो रिस्क में होते हैं? रिस्क फैक्टर क्या-क्या है हेयर लॉस के? देखिए, कई रिस्क फैक्टर्स हैं हेयर लॉस के, जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी है, कोई भी मेजर सर्जिकल सर्जरी अगर किसी में हुई है, या कोई मेजर डिजीज जैसे डेंगू या चिकनगुनिया या किसी मेजर इलनेस से कोई भी पर्सन गुजरा है, तो उसके लगभग 2 to 3 मंथ्स के बाद में वो सीवियर हेयर फॉल जो है एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा कई और मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडी होती है, उसमें बहुत कॉमनली फीमेल्स में हेयर लॉस देखने को मिलता है। कई बार क्रैश डाइटिंग कई लोग करते हैं, उसके बाद में भी हेयर लॉस बढ़ जाता है। आफ्टर हेयर प्रोसीजर्स लाइक लोग स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं, स्मूथनिंग के लिए जाते हैं, इन प्रोसीजर्स के बाद में भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी इसका कॉज होती है, जैसे अगर आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज है, एक पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल है जो आपको नहीं मिल पा रहा है आपकी कुछ डाइटरी हैबिट्स की वजह से, तो वो एक बहुत कॉमन रीजन होता है हेयर लॉस का। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक भी होता है। ज्यादातर लोगों का हमसे क्वेश्चन पूछना होता है कि आ, वो सामने वाले के बाल इतने अच्छे हैं, हमारे क्यों नहीं है, उनके बाल लंबे हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। तो देखिए, जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके हेयर के बारे में, कि आपका हेयर का लेंथ कितना जाएगा, डेंसिटी कितना रहेगा, वो आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। इसके अलावा कभी कभी जैसे कुछ ड्रग्स आप लेते हैं, दवाइयाँ कई बार लेते हैं, जैसे इम्यूनोलॉजी में कई बार कुछ ड्रग्स ऐसे दिए जाते हैं जो आपका ब्लड लेवल कम करवाते हैं, वो भी हेयर लॉस कॉज कर सकते हैं। सो मतलब बहुत ही एक मल्टी फैक्टोरियल रीजन है हेयर लॉस का ना। बिल्कुल। क्या हेयर लॉस प्रिवेंटेबल है डॉक्टर? किसी तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, हेयर लॉस बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो वी कैन इन्वेस्टिगेट यू एंड वी कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट्स टू यू। और अभी तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टॉपिकल ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, एंड कई थेरेपीज भी इस टाइम पे अवेलेबल हैं। वरना आजकल तो हेयर वापस से रिस्टोर भी किए जा सकते हैं उन लोगों में जिनमें बिल्कुल हेयर लॉस हो चुका है। So yes, there are several treatments are available nowadays. You need to just consult the right person for this. What I have seen that most of the people they start taking oral supplements on their own. If you will see on Amazon the hair supplement, if you search, तो आपको वहाँ पे 900 से भी ज्यादा हेयर सप्लीमेंट मिल जाएगा। तो लोग वो खुद ही लेना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट द कॉज, एंड दे राइट। रीचेज अस एट अ पॉइंट जब हम भी उनको इतना हेल्प नहीं कर पाते, या हमें भी कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाना पड़ता है। तो आई विल से कि आप बजाय खुद से अपना ट्रीटमेंट करने के, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें या किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लें उस चीज के लिए। अगर वो इन्वेस्टिगेट कराने के लिए कहते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, रूट कॉज फाइंड आउट करें और उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। बिल्कुल। आई एम ग्लैड कि आपने सप्लीमेंट्स का ज़िक्र किया और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है। हेयर गमीज़ बहुत ट्रेंड में है। सप्लीमेंट्स जैसा कि आपने कहा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन इतना हो गया है एक क्लिक पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग हो जाती है। तो हमको पता है कि बाल अगर झड़ रहे हैं तो बायोटिन की कमी होगी, ज़िंक की कमी होगी, आयरन की एग्जैक्टली। कमी होती है और हम इतने पैनिक कर जाते हैं कि हम जाके तुरंत सारे तरह के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। गमीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपका कहना है कि ये बिल्कुल भी एक अच्छा वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है और बहुत ज़रूरी है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाएँ। पहले पता तो हो कि आखिर रूट कॉज़ क्या है? क्या वाक़ई में हमें इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है या कुछ और वजह है? तो वजह का पता लगाना बहुत ज़रूरी है और वजह का पता एक्चुअली तभी लग सकता है जब हम डॉक्टर के पास जाएँ। जी, डॉक्टर। एक्चुअली इट्स अ टू वे स्वॉर्ड ना। लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिएंट ले रहे हैं हमें कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट न्यूट्रिशन। बट ऐसा नहीं है। कई बार अगर आपकी बॉडी में विटामिन की एक्सेस होगी, स्पेशली जैसे जो मैंने देखा है कि सप्लीमेंट्स जो
अमेजोन या इनके ऊपर जो सप्लीमेंट्स सेल किए जाते हैं, उनमें विटामिन ए, सेलेनियम, विटामिन ई जो है वो काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। तो कई बार जो है वो डेफिशिएंसी कब एक्सेस में बदल जाती है वो लोगों को पता नहीं चलता है। एंड एक्सेस ऑफ vitamins, few minerals like selenium is also a reason for hair fall. So you can never know कि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। राइट, ये बहुत सही बात आपने कही। वो कहते भी है एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी बैड, तो इसलिए सप्लीमेंट्स पर ना जाए, सबसे पहले एक डॉक्टर को दिखाएं। एक और प्रैक्टिस जो बहुत कॉमन है, हेयर फॉल होता है तो सबसे पहले हम अपनी किचन की तरफ भागते हैं, जो होम रेमेडीज हैं वो ट्राई करते हैं डॉक्टर। सो डू दीज होम रेमेडीज वर्क? वेल देखिए, इफ हेयर फॉल इज नेचुरल तो फिर तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। तो समटाइम्स हमें लगता है कि होम रेमेडीज से वर्क हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, टेक्सचरल इम्प्रूवमेंट कुछ होम रेमेडीज जैसे डैंड्रफ को क्योर करने में थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, बट मतलब पर से हेयर फॉल को रिड्यूस करना होम रेमेडीज से थोड़ा मुश्किल ही है। और जो मेन चीज है वो आपका इंटरनल बैलेंस है, जो कि आपके हेयर की साइकिल या फिर आपका हेयर का जो भी चीज है उसको रेगुलेट करता है। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि हमारे हेयर जो है एक तरह से हमारा पैरामीटर है, हेयर, स्किन, स्कैल्प, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हम कितने हेल्दी हैं ये पता चलता है हमारे स्किन से, हमारे बालों से। कई बार अगर हम बहुत थके हुए हैं, बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है हेयर पे, स्किन पे। तो ऐसे में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि आपने कहा, कि कुछ गड़बड़ है, और ये पता लगाना और रूट कॉज को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर, डाइट कितना इम्पोर्टेंट है? एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट कितना इम्पोर्टेंट है? और आपने बीच में ज़िक्र किया था कि आजकल जिस तरह से क्रैश डाइट्स का भी काफ़ी ट्रेंड है, लोग 18-18 घंटे कुछ नहीं खाते, 16-16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, या फिर बहुत मिनिमलिस्टिक डाइट लेते हैं, उसका असर भी हेयर लॉस के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में डाइट कितना इम्पोर्टेंट है और बैलेंस्ड डाइट होना कितना ज़रूरी है? देखिए, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेयर के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो आपका हेयर है उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो अंदर से आ रहा है। तो अभी जैसे जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं या जिनका जो इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क वगैरह है, ये बहुत कम हो चुका है। उन लोगों को बहुत इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज से। और जैसे आजकल लोग कार्ब्स बहुत ज्यादा लेने लग गए हैं, बाहर का फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है आपके लिए। वो ना केवल आपको डेफिशिएंट बनाता है, बल्कि वो ओबेसिटी और डायबिटीज और इस तरह के और कई बीमारियां आप में डेवलप करता है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आपका जो हार्मोनल बैलेंस वगैरह सब खराब कर देता है। So it's very important that you consume a very good diet which is rich in proteins, vegetables, fibers, and you know vitamins, essential minerals. वो बहुत जरूरी है। So diet modification is the most mandatory in basically people who are suffering with hair loss. ये वो मौसम है विंटर्स के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि जब आप सबसे अच्छे टाइम है अपनी हेल्थ बनाने का, क्योंकि जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो इतने अच्छे इस वक़्त मिलते हैं कि वाक़ई में आपके अंदर अगर कोई डेफ़िशिएंसी है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ख़ास तौर पे इस मौसम में डॉक्टर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो हमारे बालों को और बेहतर करेंगे? देखिए, कुछ विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बालों के लिए, जैसे आयरन है। तो आयरन जैसे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, एप्पल के अंदर, पोमग्रेनेट के अंदर, जो बीट रूट आता है उसमें, ये काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। गुड़ बहुत लोग खाते हैं, उसमें भी काफी अच्छा, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये नट्स आता है जैसे काजू, बादाम, अखरोट वगैरह होता है, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो आप उनको रेगुलरली कंज्यूम करें तो दे विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप लोग जैसे सोयाबीन है, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में, यू कैन कंज्यूम दैट। स्प्राउट्स यू कैन हैव, सारी जो भी दाल होती है, पनीर होता है। इफ यू कैन हैव एग्स, अगर आप ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फिश इज वेरी गुड फॉर योर हेयर, तो उनका कंजप्शन आप बढ़ा सकते हैं अपने डाइट के अंदर।
बिल्कुल। डैंड्रफ का भी डॉक्टर आपने ज़िक्र किया था और अगेन ये वाला मौसम है जब हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की शिकायत आमतौर पर होती है। तो डैंड्रफ भी क्या हेयर लॉस करता है? किस तरह से हम डैंड्रफ को ट्रीट करें, क्या करें? जी हाँ, डैंड्रफ अगर डैंड्रफ में मतलब आपका स्कैल्प का हेल्थ अच्छा नहीं है, सिंपल एज दैट। और डैंड्रफ इंक्रीज होता है क्योंकि विंटर्स में हम लोग बहुत ज्यादा हॉट वाटर बाथ लेने लग जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ल्यूकवार्म या नॉर्मल वाटर से ही बात करें। और थोड़ा ड्राइनेस आता है कुछ लोगों में विंटर्स में, तो उनको अपना स्कैल्प जो है वो प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके रखना है, तो उसके लिए वो ऑलिव ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सबसेट ऑफ देयर इज वन सबसेट ऑफ पीपल हु आर हैविंग ऑयली स्किन, तो उन लोगों को थोड़ा सा डैंड्रफ से बचने के लिए ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। ओनली हु आर हैविंग ड्राई स्किन, उनके अंदर ही सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन यूजफुल रहता है। और इसके अलावा जो है आप जो भी हाई कार्ब डाइट है उसको अवॉइड करके देख सकते हैं। लाइक जो राइस होता है या फिर मैंने बताया फास्ट फूड होता है, ज्यादा शुगर इनटेक होता है, वो थोड़ा सा आप कम करके देखिए, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, कई बार विंटर्स में सोरियासिस की वजह से डैंड्रफ होता है, बट वो लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते एंड दे कंसिडर इट एज अ जनरल कंडीशन, जनरल डैंड्रफ। तो यू कैन विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू कैन जस्ट लाइक देन चेक योर स्कैल्प एंड सी whether it is just a normal dandruff or it is some disease that is developing in developing stages, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डैंड्रफ जब होता है तो एक और बहुत आम प्रैक्टिस है, जैसे कि हम होम रेमेडीज में जिक्र कर रहे थे कि हमें बालों में तेल लगाना इंडियंस को बहुत पसंद है और हम रात भर या एक पूरा दिन अपने बालों में तेल लगा लेते हैं। डैंड्रफ होता है तो हमें लगता है कि तेल हमने ठीक से नहीं लगाया, तो हम और ज्यादा तेल अप्लाई करते हैं और हमें लगता है इससे हमारा डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है डॉक्टर? देखिए, डैंड्रफ बेसिकली कुछ नहीं है, आपकी केराटिनोसाइट है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में वहां पे डिपॉजिटेड हो गई है। तो जब लोग कुछ लगाते हैं लाइक एग या दही वो यूज करते हैं, कुछ लोग नींबू लगाते हैं, तो उससे ये होता है कि जो वो सुपरफिशियल स्किल्स है वो कुछ समय के लिए हट जाती है, लेकिन वो फिर वापस से बन जाती है। तो हम्म। दैट कुड बी अ टेम्पररी सॉल्यूशन फॉर योर सिचुएशन एंड अ नेचुरल वन ऑल्सो। तो अगर आपको लगता है उसको करने से आपका डैंड्रफ रिजॉल्व हो गया है एंड इफ यू आर क्योर्ड, then it's fine. But if you think कि अगर वो बढ़ रहा है आपके सब कुछ करने के बावजूद भी, then you have to get a professional treatment. And also कभी कभी dandruff is also a sign of fungal infection, seborrheic dermatitis, मतलब कई ऐसी बीमारियां हैं जो हम आपको dandruff लगेगी, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट से पूछोगे तो they are diseases. So you हम्म। have to मतलब judge whether it is a normal thing or something abnormal. बिल्कुल, हमें लगता है कि ये डैंड्रफ है, हम खूब सारा तेल लगा लेते हैं और फिर लगता है कि अरे ये तो बढ़ती जा रही है। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन था और इसलिए जो हम तेल लगा रहे थे, वो एक्चुअली हम फीड कर रहे थे या इन्फेक्शन को ग्रो करने में। तो ये गलती ना करें, कुछ भी ट्राई करने से पहले अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। डॉक्टर पहले भी मैंने कहा कि हम लोग हेयर वॉश करते हैं तो बाल झड़ते हैं। कई लोग तो हेयर वॉश करने से बचते हैं, वीक्स निकल जाते हैं बट दे डोंट वॉश देयर हेयर, क्योंकि उनको लगता है कि हम जब-जब जाते हैं शॉवर के नीचे तो शावर के नीचे और हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और कई लोगों का ये बहुत आम सवाल होता है कि कितनी बार 1 वीक में हेयर वॉश करना नॉर्मल है और शावर के नीचे अगर बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो क्या हम अ, हेयर वॉश करना ही बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको हेयर वॉश करना बंद करना होता है, और एक्चुअली उससे कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है आपको। इनफैक्ट यू विल वर्सन द सिचुएशन, क्योंकि उससे ज्यादा आपका जो स्कैल्प है उसका हेल्थ खराब होगा और ज्यादा वो आपको इम्पैक्ट करेगा। मोटे तौर से अगर देखा जाए तो दोज पीपल हु आर हैविंग ऑयली स्किन दे कैन वॉश एटलीस्ट 2 to 3 times इन अ वीक, एंड दोज हु आर हैविंग ड्राई टू नॉर्मल स्किन वो अगर 1 से 2 बार भी वॉश कर लेते हैं वीक में तो दैट इज फाइन, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बाकी यस, नॉट वॉशिंग योर हेयर बिकॉज दे आर फॉलिंग आउट इज नॉट एन ऑप्शन, दैट और इज नॉट जैसा आपने गोइंग टू शुरू हेल्प में यू। कहा था कि हेयर का अपना एक साइकिल भी होता है, तो हो सकता है हम वॉश करें ना करें, वो तो बालों को झड़ना ही था। कई लोग इसी डर से एग्जैक्टली। कंघी भी नहीं करते हैं रेगुलरली, उनको लगता है हम अभी स्पेशली जिनके लंबे बाल होते हैं, उनको लगता है अभी हमने जूड़ा खोला और बालों को जो है कॉम्ब करना शुरू किया और वो बहुत सारे बाल झड़ने लगेंगे। तो अगेन उसको लेके आप क्या कहेंगी डॉक्टर?
नहीं नहीं, यू शुड कॉम। कॉमिंग हेल्प्स एक्चुअली। जब आप कॉम करते हैं तो आप एक तरह से अपना जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको और ज्यादा एनहेंस कर रहे होते हैं। तो कॉम्बिंग इज वेरी गुड, बट इट मस्ट नॉट बी हार्श। लाइक आप माइल्ड कॉम्बिंग हमेशा कीजिए, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। राइट। तो माइल्ड कोमिंग जो है हमेशा करना चाहिए। कुछ जो बातें कही जाती हैं कि जब बाल बहुत गीले हैं तब कोमिंग करने से बचो, या जो वाइट टूथ ब्रशेस होते हैं उससे कोम करो। तो ये छोटी मोटी बातें तो हम ध्यान रख ही सकते हैं। कंडीशनर यूज करना डॉक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? अगेन, जैसे हेयर वॉश के समय बाल झड़ते हैं, वैसे ही जब कंडीशनर लगाते हैं तो हमें लगता है कि और ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो कंडीशनर यूज करना कितना जरूरी है, क्या फायदा उससे होता है? देखिए, कंडीशनर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यू हैव टू यूज अ कंडीशनर, बिकॉज अभी लोग बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स लेने लगे हैं, शैम्पूज का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली स्ट्रेटनिंग वगैरह भी करते हैं, तो उस केस में आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कंडीशनर्स जो है वो एक्चुअली हेल्प करते हैं, तो यू हैव टू कंडीशन। बट ये है कि एंड कंडीशनिंग जो है वो आप स्कैल्प पे ना लगाएं कंडीशनर को। बस आपको ये ध्यान रखना है, एंड दे हैव टू बी अप्लाइड ऑन हेयर स्ट्रैंड्स ओनली ओनली। तो उससे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा हेयर लॉस में, बट बस वो है कि वो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग होता है, तो आपका जो हेयर अटका पड़ा है मे बी, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा निकलने लग जाता होगा, तो यू माइट फील कि कंडीशनर से हेयर लॉस बढ़ गया है। बट अगर आप प्रॉपर कंडीशनिंग करते हैं तो उससे ऐसा कोई इशू आना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर स्कैल्प, प्रॉपर कंडीशनिंग, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ भी आपको एबनॉर्मल दिखे, आपको लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, जिस जितना हो रहा था हेयर फॉल उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, देन प्लीज गो एंड कंसल्ट द राइट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। कई बार होता है कि हम सप्लीमेंट्स में, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स पे, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि आजकल बहुत इन्फ्लुएंसिंग है सोशल मीडिया पे, तो उनकी बातें मानने लगते हैं और हमें लगता है कि हम अपना टाइम बचा रहे हैं, अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, ऑनलाइन हमने देख लिया, हमने कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाए, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आपका क्या टेक है, स्पेशली ये जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्विक फिक्सेस है, और खासकर स्किन स्कैल्प हेयर को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्किन स्कैल्प और हेयर की इंडस्ट्री अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, एंड मेनी पीपल हैव कम इन इट। और सोशल मीडिया के यूज के बाद तो इन्फ्लुएंसर्स भी एक तरह का प्रोफेशन हो गया है ये। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कौन है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसका खुद का हम्म। क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि कई डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो पहले तो जो भी पर्सन आपको ये बता रहा है, आप उसका क्वालिफिकेशन देखें, ये अच्छा रहेगा। दूसरा, हमेशा जो भी कोई ट्रीटमेंट अगर आपको करना है, नेचुरल थिंग्स की मैं बात नहीं कर रही, तो आपको हमेशा साइंटिफिक एविडेंसेस देखने चाहिए। अगर किसी चीज के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जैसे अभी बायोटिन का सप्लीमेंट की बात लेते हैं, तो हर कोई बायोटिन का सप्लीमेंट लेता है। अभी उनको पता नहीं है कि बायोटिन हमारी बॉडी में अपने आप ही बनता है। हमारे गट के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो बायोटिन इतना बनाते हैं कि हमें उसकी जरूरत होती नहीं है। हम्म। हम्म। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस ना। यू हैव टू मतलब फर्स्ट फाइंड आउट कि आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कितना सही बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है। एंड जैसे इन्फ्लुएंसर्स बढ़े हैं, वैसे ही आपके पास में नॉलेज जो है वो भी बढ़ गया है, अप्रोच टू नॉलेज भी इंक्रीज हो गया है। तो या तो आप अपने किसी खास जो कंसल्टेंट है आपके पास में, या फिर आपकी कोई फैमिली फिजिशियन है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप जो डॉक्टर्स हैं उनके भी कई वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, और वो भी आप देख सकते हैं कि व्हाट दे आर टेलिंग। तो यू शुड somehow सी कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे भी जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तो हमें उनके सर्टिफिकेट्स दिख जाते हैं, लेकिन कई बार इन्फ्लुएंसर्स के नहीं दिख पाते हैं। तो अगर आप श्योर हैं कि ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है तो ठीक है।
लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे के पास जाइए जो कि क्वालिफाइड है, डर्मेटोलॉजिस्ट है और आपकी प्रॉब्लम का सही से वो निदान कर सके। डॉक्टर, इस पर भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की कि आजकल बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइंग होता है, हम बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हीटिंग डिवाइसेज़, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बालों पर किया जा रहा है। लगभग रोज़ ही स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो इसका इस्तेमाल करती है। क्या करना चाहिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कितना हार्मफुल ये हो सकता है हमारे बालों के लिए? देखिए, इसका बहुत बड़ा खराब इम्पैक्ट पड़ता है आपके हेयर्स पे, क्योंकि आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लो ड्रायर्स या फिर बहुत ज्यादा हेयर स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं, इनफैक्ट उनके हेयर्स बहुत ज्यादा ब्रिटल होने लग जाते हैं। वो बीच बीच में से ही टूट के गिरने लग जाते हैं। और जब आप उनको टच करेंगे तो उनका जो सिल्की टेक्सचर है वो भी बिल्कुल लॉस हो जाता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये आपका जो आउटर कॉर्टेक्स होता है हेयर का, जो कि एक्चुअली आपके हेयर को शाइन देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर में लच्छर रहता है, उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इन some treatments, some people face very severe hair fall. Like I have many patients who come with the complaint ki I went into this hair straightening a month ago and now I'm having hair fall like anything. तो आप जब हम करवा रहे हैं तो आप उस वक्त फील भी कर सकते हैं कि व्हाट हार्श केमिकल्स दे यूज टू डू दीज स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। और अगर वो बहुत ही ज्यादा आपके स्कैल्प के पास में किया जा रहा है तो और भी खराब है, क्योंकि वो आपके फिर रूट्स को भी अफेक्ट करेगा। अगर आपने ये कराना भी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो अपने हेयर स्टैंड्स हैं, जो नीचे वाले हेयर स्टैंड्स है बेसिकली, जिनको आप कट करने वाले हैं, तो उनमें आप अगर कराना चाहते हैं तो वहां पे आप करा लीजिए, बट बहुत ज्यादा रूट के पास एक तो नहीं जाना है। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रेटनर्स यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसको हेयर के कांटेक्ट में ना लाके उसके बीच में, जैसे कई लोग जो है कुछ क्लोथ्स वगैरह रख लेते हैं, सो दैट डायरेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हार्शली इम्पैक्ट नहीं हो। ब्लो ड्रायर्स जब आप यूज करें तो ध्यान रखें कि उनको बहुत ज्यादा हीट वाला मोड पे ना रखें, उसको सिर्फ नॉर्मल एयर के मोड पे ही यूज करें, और वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस यूज करें, बहुत ज्यादा हेयर के पास आके यूज ना करें। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ब्लो ड्राइंग, स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, रीबाउंडिंग या जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं दूसरे उनका इस्तेमाल करते हैं, तो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अम, एक और बड़ा सवाल होता है लोगों का कि अगर वो हेलमेट पहन रहे हैं, तो उन्हें लगता है हेलमेट की वज़ह से हमारा हेयर लॉस होगा और कई लोग इसीलिए हेलमेट जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, नहीं पहनते ये सोच के कि इससे कहीं हेयर लॉस ना हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे डॉक्टर? क्या इसमें भी कोई सावधानी हम बरत सकते हैं? नहीं नहीं, wearing helmet is not a cause of hair loss. I don't know where it come from. बट पर से मेडिकल साइंस तो ये नहीं बोलता है कि हेयर हेलमेट पहनने से हेयर लॉस होगा आपका। बिल्कुल, तो हेलमेट पहनने से हेयर लॉस नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ ये सोच के हेलमेट ना पहने ये प्रैक्टिस में बिल्कुल ना लाएँ। हेलमेट बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए भी, हमारे सर के लिए भी, हमारे ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए भी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना, उसे ज़रूर पहनें। अ, हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स भी होते हैं डॉक्टर, तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, हेयर लॉस की समस्या लेकर, तो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हेयर लॉस में हमारे पास में टॉपिकल थेरेपीज अवेलेबल हैं, जैसे कुछ सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हेयर ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, हम जो कॉज है उसको ट्रीट करते हैं। डेफिशिएंसी है तो उसको, अगर हार्मोनल इशू है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ थेरेपीज भी होती हैं, जैसे कुछ लेजर लाइट थेरेपी होती है जो कि हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करती है नई ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा मतलब इनोवेटिव तरीका है आपका हेयर लॉस जो है उसको रोकने के लिए। और हेयर रिस्टोरेशन के लिए तो सभी पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह है। अब जिन लोगों का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो गया है और सीवियर ग्रेड में जा चुका है, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनमें ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हम सही जगह जाएँ। क्योंकि डॉक्टर ये भी होता है पार्लर्स
लोग बहुत जाते हैं और वहां पे भी कई बार ये दावा किया जाता है कि हम लोग भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करते हैं। सलून्स में भी ये दावा किया जाता है। एक तो होते हैं क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं और वो लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं। कई ऐसे भी क्लिनिक्स आ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सही जगह जाना कितना जरूरी है? ये जो दूसरी जगह कई बार हम जाते हैं क्योंकि पास में है, पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट या बहुत ज्यादा क्यू नहीं लग रहा है, बहुत तरह के हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो क्या नुकसान हो सकता है अगर हम किसी पार्लर से, किसी सलून से या किसी ऐसे क्लिनिक से करवाए जहाँ पे प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है? क्या नुकसान हो सकता देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने का, वो कॉस्ट होता है। कि उनको लगता है कि बहुत महंगा रहेगा, प्लास्टिक सर्जन से ट्रांसप्लांट कराएंगे बहुत महंगा रहेगा। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने की, वो ये है कि जब आप किसी एक अच्छे सेटअप में जा रहे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आप अपना जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप किसी अनक्वालिफाइड जगह पे जाते हैं और बाय मतलब गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ होना हो जाए कि आपका वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर उसको वहां पे हैंडल करने वाला कोई नहीं है। तो यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क इफ यू आर डूइंग दिस, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह में भी एनेस्थीसिया वगैरह का यूज आता है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती है। तो उस समय क्वालिफाइड लोगों का वहां पे होना बहुत जरूरी है ना। दूसरी चीज जो है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन देखना जरूरी है, प्रॉपर ओटी सेटअप देखना बहुत जरूरी है। कई बार आजकल देखा है कि एक रूम के अंदर ही बेड लगा के लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। है? तो ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉपर ओटी सेटअप नहीं है, इफ यू कैनॉट मेंटेन प्रॉपर स्टरलाइजेशन, देन देयर आर वेरी मच चांसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस। तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो छोटा सा कॉस्ट आपको ज्यादा लगता है, वो बाद में आपको बहुत नुकसान दे सकता है इफ यू हैव बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि देन यू स्पेंड मोर इन लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट कॉम्प्लिकेशन। तो देर इज नो पॉइंट इन दैट। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे पीआरपी भी सलून्स में किया जाता है, बट वही प्रॉब्लम है कि वहां पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन वो लोग नहीं मेंटेन कर पाते। They do not know how to sterilize the gauze, how to autoclave the instruments and then use them. तो वो जो भी यूज करते हैं वो सब अनस्टरलाइज चीजें यूज करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो मैंने देखा है कि दे डू नॉट वियर स्टरलाइज ग्लव्स व्हाइल डूइंग द प्रोसीजर्स। तो यस, इट कैन हैव वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट इफ इट गोज रॉन्ग। बिल्कुल। ये काफ़ी कुछ वैसा ही है, अगर हम किसी और ऑर्गन की सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तब क्या आप कि बिना किसी डॉक्टर के किसी क्लिनिक में एग्जैक्टली। जाके वो करवाएँगे? नहीं, आप तो बेस्ट डॉक्टर ढूँढेंगे। तो ऐसा ही हमें हेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीजर है, कोई ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी करना चाहिए। बिकॉज़ और कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि पार्लर में, सैलून में या बिना डॉक्टर के जो क्लिनिक होते हैं, उनमें इस तरह के हादसे हो गए कि वापस डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा। लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए बार-बार हम कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएँ। हो सकता है वहीं पे वो हमारे उसको चेक कर ले, प्रिवेंट हो जाए और आगे किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेयर फॉल की, हेयर लॉस की डॉक्टर प्रियंका शर्मा से, और हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि अगर हेयर लॉस की समस्या है, तो हम सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ। तो हेयर लॉस पर हम बात कर रहे हैं, हेयर केयर पर हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बालों का ध्यान रखें, हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें, टाइम से सोना, अच्छी नींद लेना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और बहुत ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम अपने बालों को बहुत हार्श केमिकल से भी बचाएँ। बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो हमारे डॉक्टर ने बताया कि वो मिथ है और सही में हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। अम, हेयर ट्रांसप्लांटेशन या सर्जिकल, नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, कौन है जिन्हें ये लेना चाहिए? एक जेनेटिक बाल्डनेस वाले लोग होते हैं, पैटर्न बाल्डनेस उनमें होता है, या तमाम जो दूसरे हैं, कौन है जिनमें सबसे इफेक्टिव होता है सर्जिकल, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स? देखिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट ज्यादातर जो मेल पैटर्न बार्डनेस या फीमेल पैटर्न बार्डनेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है, जिनके अंदर एक्चुअली जो हेयर है उनकी थिनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा और हेयर लॉस हो जाता है। वो भी स्पेसिफिकली जो ग्रेड 2 के ऊपर है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 में जाने के बाद में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं।
और ज्यादातर 25 की एज के बाद में ट्रांसप्लांट जो है वो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि तब तक आपका हेयर लॉस और भी ज्यादा हो सकता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो ट्रांसप्लांट है वो एटलीस्ट 25 के बाद में आप कराएं। और दिस इज अबाउट सर्जिकल ना, तो ज्यादातर जेनेटिक एलोपेशिया में सर्जिकल ही होता है जो बिल्कुल। ट्रांसप्लांट है। बाकी जिन लोगों का हेयर लॉस ज्यादा नहीं है, अभी ग्रेड 2 में ही है या उससे नीचे ही है, तो उनके अंदर हम टॉपिकल मेडिकेशंस की हेल्प से और ओरल थेरेपी, पीआरपी, इनकी हेल्प से भी काफी कुछ हेयर ग्रोथ कर लेते हैं। तो उसमें इतना ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं या फिर जिनका कुछ स्टेज पे काम है या प्रोफेशनल्स हैं, जिनको रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, उनका हेयर लाइन पीछे चला गया है और उनका किसी वजह से वो उनका जो प्रोफेशन है उसमें हैम्पर कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन लोगों में हम लोग 25 से पहले भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये एक मतलब केस टू केस डिफर करता है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट, उसका साइकोलॉजिकल इशू देखना पड़ता है कि वो कितना ज्यादा उस चीज से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, और उसी हिसाब से ट्रांसप्लांट जो है वो सजेस्ट किया जाता हमारी एक व्यूअर है सोनिया सिंह, उनका सवाल है, आर देयर स्पेसिफिक टेस्ट नीडेड टू डायग्नोस माय स्किन इशू? है। स्किन इश्यूज, वी क्या आर कोई टॉकिंग टेस्ट अबाउट हेयर स्पेसिफिक राइट है? नाउ। हाँ, लेकिन हाँ देखिए, हाँ अभी हम है। हेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे आपका हेयर लॉस जो है वो डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे हम लोग आपके विटामिन लेवल्स, आपके जो एसेंशियल मिनरल्स है उनके लेवल्स चेक करते हैं। फीमेल्स में स्पेसिफिकली हम पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए चेक करते हैं। इसके अलावा मेल्स में भी जिनमें बॉल्डनेस जेनेटिक होती है, उनमें भी हम कुछ हार्मोनल टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं। तो यस, इट कैन बी टेस्टेड। पूजा शर्मा हमारे साथ है, उनका सवाल है कि जो ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एंटी हेयर फॉल शैम्पूज हैं, सीरम है, तो क्या इनसे किसी तरह का फायदा मिलता है? एंटी हेयर फॉल बहुत सारे इस दावे के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनसे फायदा होता है? देखिए, वो उसके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रोडक्ट में कंटेंट क्या है ना। मोस्टली तो जो ये सीरम्स यूज किए जाते हैं, इनका इम्पैक्ट इतना आता नहीं है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स ही हैं, जैसे कि माइनॉक्सिडिल है, और कुछ आजकल जैसे रिडेंसिल, कैपेक्सिल वगैरह आए हैं, नए जो ड्रग्स हैं, उनका इम्पैक्ट देखा गया है। बाकी ये सोल्यूशन में कंटेंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लगा रहे हैं। तो आपको वो पढ़ना चाहिए कि आप क्या लगा रहे हैं, और उसको वही बात है कि आपको किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करना चाहिए कि इट विल बी एग्जैक्टली। हैविंग एन इम्पैक्ट और नॉट। क्योंकि ओटीसी प्रोडक्ट तो भी इतने सारे हो चुके हैं कि हम हर जिसको स्क्रूटनी में नहीं ला सकते कि क्या अफेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा। बिल्कुल, इसके लिए भी हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, वो हमें एडवाइस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक डॉक्टर के पास जाना होगा, ये वाकई में बहुत जरूरी है। और डॉक्टर, ये सेशन हम समाप्त करें उससे पहले चाहेंगे कि कोई टेक होम मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें। टेक होम मैसेज यही है कि अगर आपको अपना हेयर अच्छा चाहिए तो सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना डाइटरी इंटेक जो है उस पर फोकस करने लग जाइए। यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग, एंड कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर ईटिंग इज हेल्दी और नॉट, एंड इज इट हेल्पफुल टू योर बॉडी, टू योर हेयर और नॉट। बस एकदम अंधे होके खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। तो अपना डाइट पे फोकस कीजिए, अपना लाइफस्टाइल पे जैसे रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जिससे कि आपको हार्मोनल बैलेंस जैसी जो चीजें हैं वो डेवलप ही ना हो। तो प्रिवेंशन ज्यादा बेटर है क्योर से। तो अपना जो स्लीप है उसके ऊपर वर्क कीजिए कि आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रखिए, रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। काफी लोग आजकल योगा करने लगे हैं, वेस्ट वाले इतना ज्यादा करने लगे हैं, हम इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट वो आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और बाकी जैसे जो प्रोसीजर्स आप लोग बहुत ज्यादा कराने लग गए हैं, वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। इतना ज्यादा प्रोसीजर्स से थोड़ा हेयर लॉस ज्यादा होता है। पहले इतना हेयर लॉस का इशू नहीं था जितना इस वक्त हम लोग महसूस कर रहे हैं। स्पेशली डॉक्टर्स जो अभी देख रहे हैं, जैसा हम पहले हमारा जो ओपीडी है वो 50% ओपीडी अब हेयर लॉस का ओपीडी हो चुका है। इतना हेयर लॉस का इशू आने लग गया है, तो हमारा कुछ लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। तो उसको आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए और प्रिवेंट करने की ज्यादा कोशिश कीजिए, बजाय कि आपको बाद में उसका ट्रीटमेंट लेना पड़े।
जी, बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर प्रियंका आपसे हुई और बहुत अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ही एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर थैंक यू। दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू वेरी मच। And viewers, thank you for your active participation. Stay happy, stay healthy, and take good care of yourself. Goodbye.